broadcast. Yes, so broadcast started. Yes. Fine, so what we are going to see is that one thing that first I also wanted to say is about the timing. So Daksh, can you update us about the times? Daksh, can you listen? Yes, sir. Yes. So Uh, those, yes, yes. sir. So basically, on Tuesday, 6 to 7:30 is available. 7 to 8:30 is available. Okay. On Wednesday, also 6 to 7:30 is available, and 7 to 8:30. And Yes. on Friday, 7 to 8:30 is only available. Okay. So what we are going to do is that out of these available slots, we are going to choose certain times that suits me, and I guess that creditors are all okay with these times. Daksh, can you repeat this time once again? Okay. Tuesday. Tuesday, 6 to 7:30, Yes. and 7 to 8:30. Okay. Wednesday, 6 to 7:30, and 7 to 8:30. 6 to 8:30 anytime. Okay. And Friday, 7 to 8:30. Friday 7 to 8:30. Yeah. Yes. So we will choose maybe Tuesday and Friday, and these slots are free. So Friday, anyways, we need to take 7 to 8:30, and Tuesday probably we can also take 7 to 8:30, and probably both of these times are fine for us. And we will officially mail you the times. If anyone is having any question about the time, he can right now ask. Anyways, it's an elective course for most of you, so I am assuming that you need to check, and we are going to the off times. The reason is that as you all know that I have to take 1.5 hour lectures. So in 1 hour, most of the time I'm not able to finish the things. What I have seen is that at least 75 to 80 minutes are 100% required, and then we can have some amount of discussion so that we can have a proper time for this. So soon we will mail you about the timing. If any one of you is having any question related to time, you can ask over there. But I say that please do not try to change time according to some convenience. But if you have any class or other thing, then only we can somehow manage. Yes, so it is done. And yeah, so till now what we have covered, and now we have got so many others who are also connected. Most of them are actually in the second year. So second years are also joining, and most of them are creditors, auditors. Most of them are auditors, but anyways, fine. So what I'm going to say is that this course is right now we have started with loss. So things are, you may feel that they are under control. Maybe after this, I will start a new topic that is reinforcement learning. And once you all can, may be able to understand this, we'll try to cover maybe after that graph CNN. Depends upon that how I can finish my my understanding. So I'm also reading this stuff. So one lecture is ready, then probably I can pitch it in. My point is that maybe in the time of April, because March I'll be teaching completely and so many things I need to cover. April, be ready for your new paper. So we are going to give all of you, all the creditors, one paper, one good paper, and you all need to present in the class. So soon we'll start distributing, at least showing you the papers in which we are interested, and then you can choose out of that any paper, or probably we can also tag some paper to you. If you feel that you are not interested, then you can ask to change, and we can see that some other paper, but it has to be having relevance whatever we are teaching. So you cannot choose a paper maybe for classification using CNN, because we are anyways not going to cover that type of thing that is anyways being covered in our basic first level course. Any question is, if there is anyone of you who is having any question? कोई problem नहीं होगी. Let us go and talk about. So yes, so here we are going to talk about this. So up to this, we have taken a detour from here, and we have gone to our old slides.
in which we have talked about, the triplet loss and the metric learning. The things that we need to understand about triplet loss is, and you all need to really see it in this way, that we have got a network like this. Out of that, here we are getting an embedding, and this embedding is being trained. This network is trained in such a way so that this embedding, what you are going to get, should be that similar classes are going to cluster near in that feature space. Opposite classes or different other classes may cluster in some other space, some other slightly far from multiple classes. And this interclass distance, we somehow try to make sure that they are far enough so that we can have a discriminative feature learned out of this final layer, whatever the embedding that we are having. One thing that we all need to understand is that whatever the network that we have got here, maybe this is my trained as a CME's network. One image will come, it will go in, you will got a feature vector F, and you will normalize this feature vector. I'm sorry, you normalize it like F by its norm. So basically it becomes a unit normal vector, and that embedding that you have got over here, this embedding, whatever you have got, this embedding is going to be used further for matching. So if you have got two images, you show both of these images to this network once, you will get F1 and F2. You normalize this F1, you normalize that F2, and then find out the Euclidean distance between them. That is going to tell you that how close, if that distance is less than a threshold, is going to tell you that they are of the same class, or else they are of the different class. The understanding here is that things, so the understanding here is, so the understanding here is that that what is this? We have taken this feature vector and projected into a unit sphere, unit hypersphere. All of you can understand that we have taken a feature and projected this feature into over a unit hypersphere. If it's a 128 dimensional embedding, then whatever the 128 dimensional embedding that I have got, the direction remains to be the same, but its magnitude becomes equal to 1. So basically it may all of these are going to be over some unit hypersphere or 128 dimensional unit hypersphere. And in over that hypersphere, you can say that certain class is here, some other class is here, some other class may be here, and some other class. So you are trying to somehow find, cluster these features in such a way so that different classes occupy different, the solid angles over that sphere. Right? Any question till now? No. Fine. So let us go, and from here, so I guess that we all understand up to this, that metric learning and triplet loss and all. And after that, we have also seen that triplet loss essentially is also trying to project the embedding into a unit sphere, and there it is trying to get the best possible intercluster distance between the same and the different classes, and trying to somehow manage the best possible cluster. Right. Now let us formulate. So from here, some new thing is going to come. Till now, everyone was aware. I'm assuming that this was just the preliminary thing that I wanted to give. The thing that I wanted to cover right from my first class is actually starting now. So if you have your pen, pencil, please get it ready and work along with me. Now see that this is my input net. This is my network. Some methodology I'm first of all going to give you, that what are the meaning of the symbols that we are going to have. This is my input I, network. This is my feature vector that I am getting and naming it as X. This assuming that I am having 4 classes, or I may be having C classes. This is my output layer. This is my output layer, which is saying that 4 neurons.
Essentially, it may be having C neurons. This is my first class neuron output, and this is actually going to be connected to each and every of my previous layer. So this is my previous layer output. That is the feature over which we are going to work on. This is the embedding that we are going to get, maybe 128 dimensional. That is my X, assuming that that is an n dimensional embedding. That is why it is n cross 1. X is why x1, x2, x3, x4 n dimensional, which is actually coming from Rn subspace, Rn space. All of them are actually connected to my this X with this W1. What is the size of each W1? So you all can understand that there are how many things? There are n things, and if n things are connected to one, then n weights are going to be there. So that is why it is first, second, third, fourth, sixth, and n weights which are being placed over here. So please mute your microphone. Right. So this is like your n dimensional weight vectors. These are all your weight vectors, you all understand. And this is your first weight, second weight, third weight, and so on. And this is your n weights. This is my first W1. This is my W2. This is my W3. This is my W4. Each W is actually n dimensional. That is why you can see that if it's a 4-class problem, then your complete W or single this W, all these weights which are being represented over here, they will actually be seen as 4 cross n, right? Now let us see this raw value of 1, 2, 3, and 4. Whatever the output that you are going to get, direct output, that is y hat or y dash. This y dash is the output of the network. That's going to be what? That is going to be, so you are going to have, y dash, which is actually, this whole y dash is first value, second value, third value, and fourth value. That's why y dash actually being written as y1, y2, y3, and y4 dashes. These are the raw values that we are getting without softmax. So how you are getting this value? You're getting this value when all these values got multiplied by this weight. So it's actually a single matrix multiplication. You will get this value, basically this value. And then you will get the second and the third and the fourth values. And after that, we are going to apply the softmax over that. So this is y I dash is going to be wix. You all can see this thing very easily, that each of these entry, these are actually y1 dash, y2 dash, y3 dash, and y4 dash, and all of them are connected. And what is happening over there? W1x, W2x, W3x, and W4x are going to be these outputs, softmax. So after that, over these things, we are going to apply softmax. So over y dash, we have got, from y dash, we have got y hat, and y1 hat, y2 hat, y3 hat, and y4 hat. These are the 4 things that we are having. And y1 hat is actually y1 hat individual thing is going to be equal to this, because it's a softmax. You all understand that your denominator is going to be this, and the numerator is going to be wix power e power of that. Any questions till now with this formulation? It's a straightforward, simple formulation. I request all of you to please start using your pen, pencil, or whatever place where you can write, and keep on writing that stuff, because now I'm going to talk about certain very important few things. This is our pre-activated output. Here we are not applying any activation function. This is my final output, the embedding that we are going to get. And after that, we are having one fully connected layer like this. Right? Yes. Y, what is your Y? Y, so there are 3 Ys. First is Y dash, that is your output without softmax. Y hat, that is your output after softmax. What is Y? That is your ground truth. One hot encoded ground truth. Right. So assuming that we are having a binary classification problem, which means that here we are having only 2 neurons, only 2, y1 and y1 hat, y2 hat. What is y1 hat? Y1 hat is going to be this, y2 hat is going to be this. Let us show them on this graph. So
our assumption is that what is this y w1? This is my w1, this is my w2. What are these vectors? These are my two vectors, w1 and w2. This is some new x that we have got. So you can see that there is a what's the angular distance between w1 and w2. It's almost like 90, may not be 90, but there are far angle wise. And if I have a new some feature vector or some data point x, it's having angle theta1 from w1, theta2 from w2. And what is this? This is telling that the by what the probability by which this x is belonging to w1 and the probability by which this x is going to be belonging to w2, which is basically that what is the probability by which this is going to be coming into the class this or going into the class 2. So once we understand this stuff, you can easily see that what is going to be the decision boundary. So class 1 decision boundary has to be y1 hat has to be greater than y2 hat. Class 2 decision boundary is going to be y2 hat greater than y1 hat. Till this point, anyone is having any question, please ask. ये सभी को समझ में आ रहा है? पता नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर पूछते। आकांक्षा त्यागी, आज आप पहली बार आई है। आकांक्षा त्यागी, Yes, sir. do you understand this stuff? Yes, sir. This is fine, good. Ankita Joshi, do you want to say anything? Sir, I understand this. Understand. Aryan Bhamu? Yes, sir, I am getting. सभी कोई समझ गए? तो प्रतीक जैन, ये ठीक है? Yes, sir. कोई इशू नहीं है, किसी को कोई नहीं। अच्छा, सरल बातें थी। ओके, गुड। Sir, I have a doubt in this. डाउट है तो पूछिए तुरंत पूछो। ये सब प्लॉट में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हाँ, W1 और बड़ी W2। हाँ, तो कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। हालांकि अच्छा, तो पहले तो बताओ डब्ल्यू, आपका क्या नाम है जिसने पूछा है? पहले वो नाम बताओ। आदित्य, ये देखो कि W1 W2 है क्या? W1 W2 है क्या? वेट बताओ वेक्टर। मुझे। वेट वेक्टर कहाँ से आए? यहाँ से निकले हैं वेट वेक्टर। हाँ। ये जो वेट वेक्टर है ये लर्न हो रहे हैं। कौन लर्न कर रहा है? ये न्यूरल नेटवर्क को लर्न कराया जा रहा है। दिस W1, राइट? यस। अच्छा, तो जो इस W1 का मतलब ये है कि ये W1 एक्चुअल में है क्या? ये हाइपर प्लेन के पैरामीटर्स है ना, जिससे कि ये क्लास क्लासिफाई होती है। यस सर। ये ना, ये हाइपर प्लेन के पैरामीटर है। अच्छा, तो अगर मैंने ये W1 वेक्टर को ले लिया और मान लो कि अभी मैंने 2 डायमेंशनल W1 लिया है। ओके, हाँ। तो 2 डायमेंशनल का मतलब है कि ना हमारे पास यहाँ पे W1 जो है वो देयर आर ओनली 2 थिंग्स और ये ऐसे करके ही जुड़ी हुई हैं। तो W11 है और W12 है। ओके, आ रहा है? तो ये 2D प्लेन लेंगे तभी तो यहाँ दिखा पाएंगे ना 2D स्पेस में, वरना तो 2D स्पेस में दिखाई नहीं पाएंगे आपको W1। हाँ। अच्छी बात है। तो जब मैंने ये 2 लिए, तो जो पहली क्लास जब मैंने पूरा नेटवर्क ट्रेन कर लिया, तो जो W1 आया उसको जब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया तो वो ऐसे प्लॉट हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये आदित्य की बहुत से लोगों ने नहीं भी पूछा है, लेकिन वो पूरी तरह से इसको समझ गए कि नहीं, दैट इज नॉट वेरी क्लियर। तो लेट मी यूज यू टू लेट इट एक्सप्लेन टू एवरीवन कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, ध्यान दें इस वेक्टर में। क्या है वो 2 चीजें? बताओ, किस भी वेक्टर में 2 चीजें क्या होती हैं? एक्स एंड वाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर जल्दी किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखो, ये कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्यों? अरे लर्न ऐसे हुआ है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या हो। हाँ, है ना? तो ये लर्न ऐसे हुआ है कि W1 यहाँ पे आ रहा है, W2 यहाँ जा रहा है, और एक नया पॉइंट आया। इस नए पॉइंट को अगर आप ध्यान दें तो ये θ1 इसके साथ बना रहा है, θ2 इसके साथ बना रहा है। क्या ये क्लियर है? हाँ। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। तो अब ये जानना है कि ये कब, अच्छा डिसीजन बाउंड्री क्या है?
डिसीजन बाउंड्री का मतलब ये होता है कि कब ये पॉइंट क्लास 1 को जाएगा या क्लास 2 को जाएगा। ठीक है, तो ये फोटो क्लियर हो गई, पहले तो ये बता दो। हाँ हाँ, ये आ गया समझ में। ये अगर आ गया समझ में, तो ये डिसीजन बाउंड्री तो स्ट्रेट है कि भाई अगर इस क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो वो इसमें जाएगा, अदरवाइज वो इस पे जाएगा। हाँ हाँ अच्छी बात है। अब अगर आप ध्यान दें कि y1 और y2 में y1 ज्यादा होगा, अगर ये मैं इस चीज को यहाँ प्लॉट करूं तो वो कैसी बनेगी, जबकि ये सब देख रहे हो कैसी उल्टी सीधी टर्म्स यहाँ पे ई करके लिखा हुआ है। तो पहला बात ये आती है कि कब ये चीज ज्यादा होगी इससे। तो जो ये फंक्शन होता है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बेसिकली ये सिर्फ तब ज्यादा होगा जब W1 cos थीटा, बिकॉज ये देखो क्या है, ये क्या है, W1 x, ये डॉट प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही कहा। हाँ। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो जब W1 cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन W2 cos थीटा 2, तब ये टर्म बड़ा होगा, हाँ अदरवाइज ये टर्म बड़ा होगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो मैंने आपको बात दो बता दी है, ये वाली बात जैसे ही आपने देखी, ये मेरी क्लासिफिकेशन बाउंड्री की बात करते हैं। यहां तक आ गया ना आपको समझ में? यस सर, आगे आगे। अच्छी बात है। इसके अंदर आदित्य ने जो 3-4 चीजें पूछी, दोज वर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो पहली बात ये समझ लो कि कॉस्ट सॉफ्ट मैक्स, ये सॉफ्ट मैक्स है। व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट सॉफ्ट मैक्स करता क्या है? सॉफ्ट मैक्स करता ये है कि जो डब्ल्यूज लर्न किए गए हैं, तो जो नया एक्स आएगा वो ये देखेगा कि उसका एंगल, मतलब उसका कॉस W1 cos थीटा किसके साथ ज्यादा है, और वो उसको उस क्लास में डालेगा। अच्छी बात है, ये भी बात समझ में है। तो एक बार जरा ध्यान से देखते हैं 2-3 छोटी छोटी चीजें, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट थीटा एंड cos थीटा बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भैया ऐसे जाता है ना, ये मटेरियल ऐसे करके जाता है ना, तो थीटा हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो cos थीटा घटता चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर ये आप इससे जितना दूर करते जाएंगे, इसकी बिलोंगिंगनेस इस क्लास को कम होती चली जाएगी। ये थीटा 1 बढ़ता चला जा रहा है। थीटा 1 मतलब जिस क्लास से उसकी बिलोंगिंगनेस है, अगर वो बढ़ाते गए तो वो उसकी बिलोंगिंगनेस कम होती जाती है, इसलिए cos थीटा इज गोइंग टू वर्क फॉर अस, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो थीटा एंड cos थीटा। अच्छा, हम लोग बहुत ही इंटरनल बातें जानने वाले हैं, इसलिए बी रेडी फॉर सम इंट्रिंसिक स्टफ। कॉपी पेन का यूज करते रहे लगातार, वरना कभी भी आप आउट हो सकते हैं, और दोस थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थीटा और cos थीटा ये दोनों जो हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड लेट अस सी दैट कि W1 cos थीटा 1, W2 cos थीटा 2 ये ज्यादा है। अगर ऐसा है क्यों? लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, इस सिनेरियो में देखो और बताओ मुझे। आदित्य तुम ही बताओ कि ये थीटा 1 ज्यादा है कि थीटा 2 ज्यादा है? थीटा 1 कम है, थीटा 2 ज्यादा है। तो अगर थीटा 1 कम है तो इसको एक्चुअली किसकी क्लास में आना चाहिए? W1 आई मीन इसको Y1। W1 क्लास में आना चाहिए। अच्छी बात है। तो अगर इसको W1 क्लास में आना चाहिए, ये कब आएगा? जब ये हो। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि उल्टा हो जा रहा है। हो ये रहा है कि ये इसकी क्लास में चला जा रहा है W2 में। क्यों? वेट ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है W2 बहुत का। बढ़िया, बहुत जल्दी आपने बात को समझा, वेरी गुड। मैं इसको एक छोटे छोटे स्टेप में बताता हूं कि ठीक है, इस फोटो को देख करके आपने ये समझ लिया कि थीटा 1 कम है, इसलिए cos थीटा ज्यादा है। ठीक है, और थीटा 2 ज्यादा है, इसलिए cos थीटा कम है, जिसके की कारण से इसको किस में जाना चाहिए था? इसको जाना चाहिए था W1 की क्लास में। लेकिन अब इसमें मल्टीप्लाई होता है W2 का मॉड या फिर नॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा है। W1 का नॉर्म बहुत कम है इसके मुकाबले, इसलिए ये इसको बाहुबली की तरह अपनी तरफ खींच लेता है। इसका नाम मैंने बाहुबली टाइप्स रख दिया, WI। तो हो क्या रहा है कि cos थीटा तो 0 से 1 के बीच में खेलने वाले लोग हैं, ये खींचते अपने पास। भाई अगर मान लो एक क्लास यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये अगर ये ऐसे करके बढ़ता तो ये धीरे धीरे करके ये पॉइंट W2 की तरफ चले जाता।
लेकिन ये तो इतने पास होने पर भी इसको नहीं दे रहा, क्यों? ये कहता है मेरे पास हैसियत ज्यादा है तो ये जमीन ज्यादा मेरे पास रहेगी, तुम्हें कम मिलेगा। देख रहे हो ना, स्पेस ये सारा अपनी तरफ खा रहा है और इधर के छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वही बेचारे इधर आ पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि W2 इतना ही बड़ा हो गया कि वो इतने के अंदर वाले लोग बिल्कुल जो बगल में सिर्फ वही जा पाए, और हो सकता है कोई भी ना जा पाए। सो लेट अस सी, अभी हम ये कोई बात नहीं कर रहे पॉजिटिव नेगेटिव, हम ये कह रहे हैं कि सॉफ्टमैक्स करता क्या है। सॉफ्टमैक्स ये करता है कि ये फंक्शन को लर्न करके बेसिकली ये डिसीजन बाउंड्रीज बनाता है। और उसके साथ अगर आप देखें कि सॉफ्टमैक्स लॉस फंक्शंस डिसीजन बाउंड्री डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस। कोई भी ith क्लास के लिए वेट वेक्टर क्या है और उसका cos थीटा क्या है, दोनों पे डिपेंड करता है। Now since cos theta is between -1 and 1 and weight vectors are unconstrained, so Wi may become a bahubali. So he may take whatever the things that you want और दूसरी क्लास को पूरी तरह से बहुत ही कम स्पेस प्रोवाइड करे जहां पे उसके पॉइंट रह सकते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि इस पे हम लोग बाद में जाते हैं। मे बी आई हैव रिटन इट समवेयर, आई एम गोइंग टू शो इट वंस। यस, this is actually uneven and biased space partitioning, ठीक है ना, biased space partitioning। जो जमींदार होते हैं ना, जमींदार टाइप के लोग, तो जमींदार क्या करते हैं कि वो कहते हैं गरीब आदमी जो है आपका वेट ये कम है, हो तुम इंसान, लेकिन तुमको मिलेगा, तुम्हारा वेट चूंकि कम है तो तुम्हें बस इतनी जगह मिलेगी। और दूसरे लोग जो है वो यहाँ से इतना पूरा ले लिया। पहली बात, अच्छी बात है। तो अगर आप इसको ध्यान दें तो यहां से हम लोग जा रहे हैं स्फीयर फेस फंक्शन की तरफ। तो अगर आप इसको ध्यान दें कि स्फीयर फेस फंक्शन, तो हाइपर स्फीयर ये था, ये अभी भी हाइपर स्फीयर नहीं, इट्स एक्चुअली अ स्फीयर विद आई मीन 3 डायमेंशनल थिंग। एंड नाउ यू सी दैट ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है। तो ये सॉफ्टमैक्स के थ्रू कुछ इस तरीके से चीजें लर्न हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको स्फीयर केस जिसपे कि जाना और आज हमें देखना है, ये लेटेस्ट, इट्स नॉट वेरी लेटेस्ट बट इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड स्टैंडर्ड लॉस फंक्शन। तो ये करता क्या है, ये देखो, ये ऐसे क्लस्टर्स करता है, ये नहीं कहीं भी फैल जाओ। और क्यों ऐसा करता है हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे one by one, but you need to really at least understand that here efficient and compact data representations need to be learned, ये नहीं कहीं भी फैल जाओ, ठीक है। yes, so first of all let us see that few classification decision boundaries are learned separating the classes. This can be serious issue when output lie nears the decision boundaries. अभी हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि separating classes वो learn करने की कोशिश करता है for classification, but serious issue हो सकता है if your points are near to your decision boundary. Let us see what I'm trying to say. What I'm trying to say is that this is one that you can see that यहाँ से मेरी एक क्लास यहाँ पे भर रही है, एक क्लास यहाँ पे भर रही है, ये तो ठीक है ना, ऐसी भरनी चाहिए ना, इधर इधर भर रही है। लेकिन चूंकि इसका वेट ज्यादा है तो यहाँ तक भी ला सकता है, यहाँ भी ला सकता है, यहाँ भी ला सकता है, और इसको सिर्फ इतनी ही जगह पे जाना पड़ेगा। So one thing that one should have to understand that कि जो normal softmax है जिसकी की अभी तक हम लोग ने बात की है, it is going to give you infinite amount of space to fill within that angular range. और वो angular range ये है कि तुम्हारी range इतनी है भैया, इतने में भर लो। तो ये infinite है ना, यहाँ से आगे चलते चले जाओ, infinite range है जो भरने को दे रहा है। इसको ये और भी infinite range दे रहा है, बहुत ज्यादा। Yes. So that is, so the good thing is that it is giving you infinite amount of range within that angular range. So one can fit huge amount of data in between. सभी लोग मेरे साथ चले, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो अभी आपको सुनने में इजी लगेंगी, बट आप अप्रिशिएट तब कर पाएंगे जब मे बी यू लिसन टू इट मल्टीपल टाइम्स और कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि ये कहानी कहीं भी इस तरह से अवेलेबल नहीं है कि ये सब चाहिए क्यों।
So when you have got normal softmax, you have infinite amount of space in which between that angular range तो मिलती है certain classes को बड़ी, certain classes को छोटी, but in that within that circular angular range आप बहुत सारा value भर सकते हैं, बहुत सारा point भर सकते हैं. So that is good to capture the intra class variation कि एक class के अंदर जितना भी variation है, अगर infinite amount of space देता हूं तो आप भर सकते हो, बहुत सारी जगह है. But इससे होता क्या है कि all space got exhausted because your features can be separated or spread over the whole space. पूरे स्पेस में अनाप शनाप तरह से डेटा को भर दिया जा रहा है, और ये नेटवर्क को लर्न करना इजी भी पड़ेगा, आसानी से लर्न कर लेगा, और पूरे में फैला दिया उसने डेटा. इससे हुआ क्या? पहला तो ये हुआ कि besides uneven, we are going to have uneven and biased space partitioning. That is the effect of WIs. Different types of WIs you are going to get, और उनके effect आएंगे. और क्लास लेवल पे no compactness and inefficient feature space utilization. This is what that is going to happen. अच्छा, एक बात और कि ये ओरिजिनल स्पेस है जिसमें कि मेरे फीचर्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है, and then I can see the same thing in another space where all of my features got projected into the sphere. मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर अपने सारे x वेक्टर्स को लिया और इस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया, तो अब वो कहाँ आएंगे? अगर 2 डायमेंशनल है तो वो सब आएंगे यहाँ. और आप देखें कि ये क्या हो रहा है? ये एक क्लास है, ये क्या हो रहा है? ये दूसरी क्लास है. यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा काम भी हो रहा है. क्यों? क्योंकि भाई एकदम सेपरेबल नहीं होंगे, बट एंगल, कितने एंगल किसको मिला हुआ है, ये उसके इस पे डिपेंड करता है कि उसका वेट वेक्टर क्या था, W वेक्टर. और आपको दिख ही रहा है कि इसका वेट वेक्टर ज्यादा है और इसका वेट वेक्टर कम है. सो मे बी दिस गाय इज गोइंग टू हैव मोर एंगल जिसमें कि ये फैला हुआ है, और इसको थोड़ा हो सकता है कम मिले. हेलो. तो यही, एक मिनट, ये मैंने आपको फोटो दिखाई, यही फोटो मैंने यहाँ पे फिर दिखा रखी है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक सर्टेन रेंज के अंदर ही रहेगा और इसको ज्यादा स्पेस मिलेगा. अभी आते हैं, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछो. सर, हाँ सर, अगर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाए और उसमें एक डायगोनल बना दें तो क्या वो मतलब बाउंड्री बताएगा दोनों क्लासेस की? इधर यहाँ पे इसमें आप कह रहे हैं, इस फिगर में? हाँ सर. तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कह रहे हैं, नहीं सर, ये बगल वाला नेक्स्ट डायग्राम जहाँ W1 W2 V1 और V2 है. अच्छा, ऐसे करके ऐसे. हाँ, लेकिन ये और सिर्फ W1 पे नहीं डिपेंड कर रहा ना बेटा, ये वाली चीज जो है W1 और cos थीटा पे भी डिपेंड कर रही है, cos थीटा i. तो इन दोनों का रिजल्टेंट उससे नहीं निकलेगा, दोनों मटेरियल है. ओनली थिंग इज दैट कि W1 बहुत ज्यादा खा लिया तो फिर θ1 की हो सकता है कोई वैल्यू ही ना बचे. तो ऐसा ना हो जाए W1 इतना बड़ा हो गया, तभी तो हम लोग W1 को भी अलग से रेगुलराइज करते रहते हैं. वी मेक श्योर दैट कि W1 आल्सो डोंट बिकम टू बिग. अच्छी बात है. हाँ बोलो, पूछो. सर ये स्पेयर फेस वाला इमेज वो करिए जरा. यस सर, इसमें सर m = 1 और m = 3 का अभी आएगा, वो आगे आएगा, उसकी बात अभी करी नहीं है. अच्छा, लेकिन अभी बताया है कि ऐसा सॉफ्टमैक्स कर रहा है और ऐसा चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ. ठीक है. हाँ, और पूछो. और सर ये कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होगा यहाँ? कॉम्पैक्टनेस का मतलब ये है कि अगर तुम्हें एक घर दिया है तो अपने कमरे में रहो ना, पूरे मोहल्ले में मत घूमो. सोशल डिस्टेंसिंग, समझे? पूरे में घूमोगे तो होगा क्या ना कि इनएफिशिएंटली पूरी जगह भर रहे हो. आइटम हमारे पास उतना ही है, डेटा यहाँ भी भर दिया सब. ये देखो ना, पूरे में इसने दिया फैला. तो हो ये रहा है कि लर्न तो हो जा रहा है, लर्निंग में कोई इशू नहीं है. सॉफ्टमैक्स लर्न कर लेता ना, तो सॉफ्टमैक्स ऐसे करके लर्न कर लेता. प्रॉब्लम क्या है इसमें? कॉम्पैक्टनेस नहीं आई. इस कॉम्पैक्टनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि सर कॉम्पैक्टनेस चाहिए क्यों आपको इतनी? क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हो रहा है. ये क्लास और ये क्लास में अच्छा सा डिफरेंस है. इस क्लास और क्लासिफिकेशन लर्न हो जाएगा. देखो ऐसे करके ये ऐसे बाउंड्री बना लेगा, नॉन लीनियर बाउंड्री. तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, बट मेरा नेटवर्क इसको लर्न कर लेगा.
और आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो है वो 100% और 98% और ये सब तो कोई इश्यू नहीं आएगा एक्यूरेसी में। पॉइंट इज दिस कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको फायदा क्या मिल रहा है? ये सब इतनी जगह खाली छोड़ दी, इनका क्या होगा? समझ रहे हो ना बात? यस सर। ये क्वेश्चन का जवाब अभी दूंगा आगे जाके, लेकिन आप इस क्वेश्चन तक पहुंच गए। यस और लोग पूछें, कोई और भी पूछ रहा था। सर हाँ बोलो। सर ये जो तुम्हारी आवाज कट गई प्रतीक, सॉरी प्रतीक, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज तो नहीं कट रही है? दक्ष, प्रतीक की आवाज नहीं आ रही। प्रतीक के आ रही, प्रतीक की आवाज कट गई है। अगर वो बीच में आएगा तो हम उसे एड्रेस करेंगे। बाकी आई गेस सभी लोग ये बात समझ गए हैं। सर पूछिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। सर ये वाली स्लाइड में जो यस सर 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 इसमें सर हमारे फीचर वेक्टर जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। हाँ सो इसलिए यूनिट हाइपरस्फीयर पे वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सर W1 और W2 का इसमें ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो भी उनका मैग्नीट्यूड भी मतलब 1 से कम होगा यहाँ पे इन दिस 1 से डायग्राम? कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं करेंगे, बाद में इसको भी नॉर्मलाइज करेंगे। अभी तो नहीं नॉर्मलाइज करती ना। जब आप सॉफ्ट मैक्स लगाती हैं नॉर्मल, यस सर। तो जब ये लगाती हैं तो कहीं भी आप W को नॉर्मलाइज नहीं करती हैं, आप इन एक्सेस को नॉर्मलाइज करती हैं, इन फीचर्स को। यस सर। जो मैंने यहाँ पर शुरू होने के ही पहले बता दिया था, ये कि जो भी फीचर्स निकाले जा रहे हैं। तो अभी W नहीं नॉर्मलाइज किया है, आगे बढ़ते हुए करेंगे क्योंकि वो अगला स्टेप भी है ना। प्रॉब्लम जब उससे है तो उस प्रॉब्लम को मैनेज करेंगे। कि सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपने समझ लिया। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ये चीजें इस पे और इस पे दोनों पे डिपेंड कर रही हैं। दोनों में डिपेंड करने की प्रॉब्लम जब आपने समझी तो आप चाहती क्या है? आप चाहती ये है कि ये और ये अगर ऐसे जैसे भी हो ये इसके एंगुलर बाइसेक्टर पे आए तो सबको बराबर बराबर मिले, है ना? यस सर। तो वो नहीं हो रहा है, एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं दे रहा है डिसीजन। ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन इस पे डिपेंड करता है कि तुम लोग के वेट्स क्या है। उसके आधार पे अगर इसका वेट बहुत ज्यादा है तो ये इसको बहुत ही कम देगा, ठीक है, जगह ओके एंगल सर। में। हाँ ये वाली बात हो गई। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डोंट वरी, अभी एकदम आपको समझ में आ जाएगा। we need to decide by W1. Okay, now the point is the points close to W1 will go to class 1, but how do we define closeness? ऐसा हम चाहते हैं तो क्लोजनेस अगर हम ये डिसाइड करें कि इनको डिसाइड करने के लिए हमें इन दोनों की भी जरूरत पड़ती है और बेसिकली ये एंगल के ऊपर डिपेंड भी करता है और इन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एंगल के ही ऊपर डिपेंड करे, बिकॉज W1 और W2 तो लर्न होते जा रहे हैं ना। और अगर ये लर्न हो रही हैं चीजें और इनकी वैल्यू बड़ी या छोटी है तो इनके आधार पे तो चीजें नहीं फिक्स होनी चाहिए। फिक्स तो होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस कितना है इसके साथ W1 या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास 1 से वो कितना दूर है, और वो तो cos थीटा एंगल बता रहा है। तो सिर्फ अगर उसी पर डिपेंड करना हो तो कैसे इसको किया जाए? सो दिस इज द रियल नेचर ऑफ द सॉफ्टमैक्स जो हमने आपके सामने रखा। अभी तक कुछ नई बात नहीं बताई है, जस्ट वी हैव शोन दैट हाउ सॉफ्टमैक्स इज वर्किंग एंड विद इन दैट एंगुलर रीजन विदाउट एनी apparent clustering the network is free to project features anywhere within that space। कहीं भी फेंक दो। मैंने बोला ये एक लाइन है, सारा इधर रखो सारे इधर रखो, नेटवर्क कहीं भी फेंक दे, you are happy and okay। softmax is not going to give you any loss if same क्लास 1 का पॉइंट इधर है और क्लास 2 का पॉइंट इधर है। अब चाहे वो इधर रहे चाहे वो इधर रहे चाहे वो इधर रहे चाहे वो इधर रहे चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बस इधर गए तो लॉस बना दूंगा। यस इतनी सब कहानी के बाद हम लोग पहुंचे क्या कि दिस मे नॉट बी गुड फॉर जनरलाइजेशन एंड फेल्स इन ओपन सेट सिनेरियो। तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि जो ये मैंने लाइन बोली, इस लाइन को कितने लोग क्वेश्चन 3 लिख के चैट में आ गया कि लोकेंद्र ऑडिबल ऑडिबल, ये तो पुराने जमाने की बात है। पार्टिसिपेंट्स, you can raise your hands if you appreciate
दिस लाइन कि इस तरह से जो सॉफ्टमैक्स काम कर रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर जनरलाइजेशन एंड फेल्स फॉर ओपन सेट सिनेरियो। चक्कर क्या है इस बात का? आप लोग हैंड रेस करें जो लोग इस बात को अप्रिशिएट कर पाते हैं। प्रियांशु, शुभम ने हैंड रेस किया, गुड। एक बंदे ने अभी तक हैंड रेस किया हुआ है, तान्या। जनरलाइजेशन अंकिता जोशी, 5 लोग आए हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाऊंगा, लेकिन क्या आप इस पॉइंट को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? 20 लोग हैं, 5 लोग बोले हैं। दक्षता पर हैंड रेज एनीवेज कर ही सकते हैं। कौन लोग हैं? बस 5 हैं। 5 बहुत ही कम है भाई 20 लोगों में। 6 हो गए। मेरे बोलने से मत हाथ रेज करो अगर आप समझ गए हैं तो। मुझे चाहिए कि ये बात आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। 6, इसका मतलब है कि मुझे अच्छे से समझाना होगा, गुड। मैं आपको बताता हूँ। तो अभी एक लड़का मुझसे बात कर रहा था ना, अपना वैभव। वैभव, आपसे मैं कहता हूं कि ये जगहें मैंने इसलिए खाली की कि ये नहीं कि कहीं भी पूरे में फैल के बैठ जाओ। अब क्लास खाली है, कोरोना टाइम चल रहा है, 2 ही बच्चे क्लास में है, बैठ जाओ भाई, कोई बात नहीं। तो ये बच्चे यहाँ बैठ गए, ये बच्चे यहाँ बैठ गए, ये बच्चे यहाँ बैठ गए। अभी लोग और आना स्टार्ट हो गए, उनको कहाँ बैठाऊं? तो अगर वो यहाँ ऐसा माहौल होता तो आपने इनएफिशिएंट पार्टीशनिंग कर दिया डेटा की, और वो लोगों ने इतनी उल्टी सीधी जगहें खाली, जबकि वो कॉम्पैक्टनेस यहाँ पर अगर ऐसे कॉम्पैक्ट फीचर लर्न होता तो ये जगहें खाली हैं। ये जगहें खाली हैं किनके लिए? ये जगहें खाली हैं इसी क्लास के अगर और लोग आए तो ये धीरे धीरे अपनी जगह बढ़ा सके। दूसरी बात, अगर कोई अनसीन क्लास आ गई जो हमने कभी देखी ही नहीं, तो ओपन सेट सिनेरियो का मतलब यही होता है कि अनसीन डेटा, ऐसा बच्चा जो आज तक क्लास में आया ही नहीं था ना, फर्स्ट ईयर तो आया ही नहीं बेचारा, अभी तक इंस्टीट्यूट आ ही नहीं पाया ना फर्स्ट ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के बच्चे, जिनको कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं, उनके लिए जगहें खाली रखनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि चूंकि यहाँ पर थर्ड ईयर और एमटेक है, ये मान लो एमटेक है और ये है पीएचडी, और इन लोगों ने पूरा घेर लिया। ये पूरा एमटेक ने कहा भाई कोई है ही नहीं तो ये सारे कमरे मेरे, और पीएचडी ने कहा कि यहाँ भी नहीं कोई तो ये सारे कमरे मेरे, तो बचा हुआ सारा मेरा हो गया। अब जब बीटेक आना स्टार्ट होता है तो इन दोनों में लड़ाइयां स्टार्ट हुई, भाई ये तो मेरी जगह थी। अब वो कहाँ जाए? तो उसको जितनी कम बची हुई जगह है जब आप उसमें श्रिंक कराएंगे तो ओपन सिनेरियो में, ओपन सेट सिनेरियो में चीजें फेल होने लगेंगी उस डेटा के ऊपर जिस डेटा को आपने देखा ही नहीं। तो दैट इज व्हाई यू रिक्वायर क्लास कंपैक्टनेस। सो हम लोग यहाँ से यहाँ क्यों चलना स्टार्ट किए? काम तो यहाँ भी हो ही रहा था ना, जितना डेटा है और जितनी क्लासेस हैं। अगर मैं इतनी जगह एमएस को दे दूं या एमएस एमटेक पीएचडी को, एमएस एमटेक वालों को दे दूं और बची हुई जगह पीएचडी को दे दूं, तो दे विल बी मोर देन एनफ। क्यों? क्योंकि पूरा आईआईटी मंडी 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि सिर्फ वही लोग यहाँ पर रुके हुए थे। अब जैसे जैसे जनरलाइजेशन स्टार्ट होता है तो एमटेक से कहा गया कि भाई तुम्हें सिंगल रूम दिया था, अब डबल रूम मिलेगा, तो वो गुस्साना स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से हमने बोला कि भाई अभी एक नई क्लास आ गया, कौन है वो है बीटेक डेटा साइंस। ये तो था ही नहीं, इसके लिए जगह ही नहीं है। तो इसके लिए जगह, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, खाली समय में भी हम क्लास को कॉम्पैक्ट बनाएंगे। जितनी क्लास कॉम्पैक्ट होगी उतनी मेरे पास स्पेस ज्यादा होगी, हमें स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं पहला इशू, जिसको कि हमने मॉडिफाइड सॉफ्टमैक्स के तहत सॉल्व करने की कोशिश की। सो ट्रिपलेट लॉस भी और ये जो हमारा मॉडिफाइड है, ये दोनों ही लोग इंट्रा क्लास कॉम्पैक्टनेस और इंटर क्लास सेपरेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। इंटर क्लास विद इन क्लास कॉम्पैक्ट हो। अगर 2 लोग सेम क्लास के हैं, एमटेक एमटेक के, तो पास में रहो ना। अब एक को साउथ कैंपस, एक को नॉर्थ कैंपस में नहीं रखना है, सबको एक साथ रखना है। और इंटर क्लास सेपरेबिलिटी कि अगर एक क्लास है तो दूसरी क्लास से दूर रहो। अच्छा, both of these things, inter and intra, they are required for visual classification and verification. Verification और classification दो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। Verification का मतलब होता है कि I am giving you 2 things and saying that both of them are same. This is my claim. Can you verify this claim? तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी निकाल के देखो, थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि नीचे है, that is going to tell you that whether they are same or different. So you need to verify a claim. ध्यान दे,
कॉन्वोल्यूशनल फीचर लर्निंग में क्या होता है, मेरे पास ट्रेनिंग डेटा होता है, कॉन्वोल्यूशनल यूनिट्स होती हैं, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क आता है, और ये जो फुल्ली कनेक्टेड क्लास सॉरी ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन आता है, इस फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग आते हैं सॉफ्टमैक्स, और उसके बाद लगाते हैं क्रॉस एंट्रोपी। सो ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि जो भी मेरा फीचर निकलता है एफ, वो सॉफ्टमैक्स में जाता है और वो सॉफ्टमैक्स से निकल के क्रॉस एंट्रोपी में जाता है। दैट इज द सॉफ्टमैक्स लॉस, ये हम पहले ही देख चुके हैं। बट द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू शो इज दैट कि ये अगर मैंने इसको मैंने सॉफ्टमैक्स के बाद इसमें भेजा, ओके, और मेरी आखिरी लेयर का जो आउटपुट है वो एफ है, तो इसको जरा मैं आपके सामने दिखाऊं कि जो ये फाइनल क्रॉस एंट्रोपी है वो लास्ट लेयर के फीचर पे कैसे डिपेंड करती है, लास्ट लेयर के फीचर पे ये फाइनल चीज डिपेंड कैसे कर रही है। तो मैंने आपको पीछे दिखाया भी था कि ये मेरा एक्स वेक्टर था जो कि एन डायमेंशनल था, ये मेरा y1 y2 y3 y4 था, आउटपुट f ऑफ y1 f ऑफ y2 f ऑफ y4 आ रहा है, ये वेट्स हैं w ऑफ y1 के, और ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। इसके बाद क्या लगता है, तो ये जो चार चीजें हैं 1 2 3 या 4, दिस इज माय w ऑफ y1t y2 एंड सो ऑन, और फिर मेरा सॉफ्टमैक्स, इनके ऊपर सॉफ्टमैक्स लगा है जो कि ऐसे डिफाइन होगा। सभी लोग इसको 2 मिनट ध्यान से देख लें, मतलब 2 मिनट नहीं 10 सेकेंड ध्यान से देखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। पहली बात ये कि कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। ये वैल्यू ये मैंने ऐसे करके लिख दिया बस, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज fy है, fy मैंने यहाँ लिख दिया और बाकी सारे fy। क्या बना ये, what is this? This is my last layer से जो ये मेरा निकला, तो what is my, अगर मैं if I write it in this way, then what is my x? That is my last layer feature. तो यही चीज मैंने लास्ट लेयर फीचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करा हुआ है फाइनल चीज। और मेरा टोटल लॉस कितना होगा, तो टोटल लॉस होगा वो ये होगा। और व्हाट इज दिस लॉस, हर एक पे लॉस आएगा L1 L2 L3 L4, और इन चारों के लॉस को क्रॉस एंट्रोपी में जोड़ दिया जाता है। एंड व्हाट इज योर Li, बहुत ही सिंपल, ध्यान दे दे सभी को, ये क्या बना था, ये बना है, ठीक है ना। या फिर अगर i के लिए लिखें, देन i के लिए लिखें तो e की पावर f ऑफ yi डिवाइडेड बाय समेशन e yi इक्वल टू 1 to 4 और ऑल द क्लासेस। रिटर्नड इंफॉर्मेशन है, मैं जस्ट आपके सामने लिख रहा हूं कि एनी li और L1 L2 L3 L4 और LC क्या बनेंगे, ये बनेंगे। यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लास ith क्लास के लिए आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपने यहाँ पर लिख रखी है। ith क्लास के लिए क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख रखी है, लॉग है। और यहाँ पे ग्राउंड ट्रुथ क्यों नहीं आया इसका, ये बात हम किसी से पूछ लेते हैं, हल्की सी है ना, ये बात हम पूछ लेते हैं कि ग्राउंड ट्रुथ क्यों नहीं आया, ग्राउंड ट्रुथ क्यों नहीं आया, ये बात हम पूछते हैं RN भामू से। RN भामू आप बताएंगे। RN आप म्यूट हैं, RN आप म्यूट हैं, अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ, नहीं हो पा रही RN भामू से बात। हम लोग ये बात करते हैं आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता आपको आवाज आ रही है? यस सर। आयुष गुप्ता मेरा क्वेश्चन आप समझे? यस सर, आपने पूछा यहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ नहीं है। हाँ, यहाँ पे दो चीजें भाई, ग्राउंड ट्रूथ मल्टीप्लाई होता है और लॉग ऑफ जो उस क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ ग्राउंड ट्रूथ गायब क्यों हो गया? सर नहीं समझ आ रहा अभी, मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कोई पता बात चल नहीं, रहा। डोंट वरी, मैं आपको, अरे परेशान मत, तुम्हें बता दूंगा। मुद्दा ये है कि मैं साथ रखने की कोशिश करता हूँ, और आई रिक्वेस्ट दैट से भी कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो उसका मकसद सिर्फ इतना है, ये देखना कि लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं या किस जगह फंस रहा है। अभी आपको जवाब दे देता हूँ ना इसका। भाई आपको ये याद है कि ये लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटी और उसमें ग्राउंड ट्रूथ मल्टीप्लाई होता है। ग्राउंड ट्रूथ ये किस क्लास की बात कर रहा है, ith क्लास की, तो ith क्लास के ही तो ग्राउंड ट्रूथ यहाँ पे आएगा। तो अगर ये ith क्लास को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे उसका सैंपल में 1 आएगा ना। ओके हाँ, तभी तो 1 आएगा ना तो यहाँ। वहाँ पे 1 है, हाँ ओके। और बाकी क्लासों के लिए तो वैसे भी 0 है। हाँ 4 ठीक है। क्लासेस हैं, मान लीजिए ये तीसरी क्लास के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए ये 1 होगा, बाकियों के लिए 0 होगा, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी है, ये लॉग है, ये माइनस है। ठीक हो गई ना बात? यस सर, यस सर। अच्छा
नॉर्मल सॉफ्टमैक्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द लास्ट लेयर। ये कोई नई चीज आपको नहीं बताई और अभी तक मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन या कोई नई चीज नहीं की है, सिर्फ नॉर्मल सॉफ्टमैक्स को मैंने लास्ट लेयर के आउटपुट पे डिफाइन किया, जो कि ये है। और ये क्या है, ये अपनी क्लास से, ये है अपनी क्लास से कितना एंगल बना रहा है उसका कॉस, और ये है उस क्लास का वेट वेक्टर, और ये क्या है, ये बाकी क्लासेस से सबका जोड़ है। अच्छी बात है। अभी आते हैं एक सिंपल सी बात पर, वो क्या है कि जस्ट कंसीडरिंग द बाइनरी क्लासिफिकेशन, जो कि हमने पीछे भी देखा था, और फिर से मैंने वही वाली बात लिख दी कि मॉड ऑफ W1 x cos थीटा 1 नीड टू बी ग्रेटर देन W2 x cos थीटा 2। ये पुराने जमाने की बात ही है जो चल रही है। अच्छी बात है। अंकिता ने या किसी ने ये बात बोली थी, कांक्षा ने, कि हम इसको नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर देते हैं। यही पहला पार्ट है जिसको कि हमने मॉडिफाइड सॉफ्टमैक्स में इसको नॉर्मलाइज कर दिया। इसको नॉर्मलाइज किया तो हमारे वेट वेक्टर्स भी कहाँ पे आ जाएंगे, यूनिट स्फीयर पे आ जाएंगे, यूनिट हाइपर स्फीयर पे आ जाएंगे। दीज आर गोइंग टू बी आवर वेट वेक्टर्स एंड दैट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल अवर मॉडिफाइड सॉफ्टमैक्स, जिससे कि ये चीज भी खत्म हो जाएगी। देखो ये तो खत्म ही हो जाती है, ये भी खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये बैठेगा cos थीटा 1 नीड टू बी ग्रेटर देन cos थीटा 2। अच्छा, जब cos थीटा 1 नीड टू बी ग्रेटर देन cos थीटा 2, तो ये मेरा लॉस फंक्शन हो जाएगा। और अगर मेरा ये मेरा लॉस फंक्शन हो गया, दिस विल लीड टू कहाँ, ये एंगल बाइसेक्टर पे ले आएगा चीजों को। ठीक है, अगर मेरे पास ये W1 है और ये W2 है, नाउ इट डजंट मैटर बिकॉज ये दोनों बराबर है। ये डिसीजन बाउंड्री कहाँ आएगी, बीचों बीच में। कोई भी पॉइंट यहाँ है वो इसके पास जाएगा, यहाँ है इसके पास जाएगा, यहाँ है इसके पास जाएगा। जैसे ही इसने इस इधर की तरफ आया, इसके पास जाएगा। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर बाउंड्री बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ये होगी ना, cos थीटा 1 नीड टू बी ग्रेटर देन cos थीटा 2. This will lead to the angle bisector. We will have, so need to understand that we are going to have two types of feature space. One feature space is the original feature space. Second feature space is the projected feature space, जिसमें कि हम लोग पॉइंट्स को लेकर यूनिट स्फीयर पे प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे पॉइंट्स भी इस यूनिट स्फीयर पे प्रोजेक्टेड हो जाएंगे और हमारे वेट्स भी यूनिट स्फीयर पे प्रोजेक्टेड हो जाते हैं। Let us see that second figure. ये वाला है ओरिजिनल स्पेस में, जिसमें कि मेरे पॉइंट्स यूनिट स्फीयर पे नहीं प्रोजेक्टेड हैं। ये कैसे देख के समझ में आ रहा है कि यूनिट स्फीयर पे नहीं प्रोजेक्टेड है, ये वाली बात भी चलिए किसी से पूछ लेते हैं। लोकेंद्र तुम बताओ, लोकेंद्र आपको सुनाई दे रहा है? जल्दी जल्दी लोकेंद्र। यस सर। ये देखो ना, ये वाले पॉइंट्स जो है ये यूनिट स्फीयर पे प्रोजेक्टेड है, ये फीचर्स। यस सर। ये यूनिट स्फीयर पे, लेकिन अगर प्रोजेक्टेड होते तो जितने भी मेरे फीचर्स हैं उन सब का नॉर्म क्या होता? इक्वल होता सर। लेकिन इनका अलग अलग है, डिफरेंट है। इनका अलग अलग है, तो ये यूनिट पे नहीं है, देख रहे हो ना? यस सर। अच्छी बात है। तो ये कहाँ, ये ओरिजिनल स्पेस पे है। और लेकिन ओरिजिनल स्पेस में एक अच्छी बात देख रहे हो कि ये क्या किया इसने, बाउंड्री बना दी बीच में। कैसी? बाहुबली वाली नहीं, दोनों को बराबर बराबर पार्टीशनिंग करके दिया। और अगर मैं इनको प्रोजेक्ट कर दूं तो अब देखिए सब कुछ यूनिट स्फीयर पे आ गया। W1 भी है, W2 भी है, ये भी है, ये भी है, और बाउंड्री आ गई बीच में। एंगल क्यों? क्योंकि मॉड को हमने W को भी नॉर्मलाइज कर दिया, तो बाउंड्री बिकम्स द बाइसेक्टर। सी दिस, यहाँ बीच में क्लटर भी कम हो गया। यस सर। अच्छी बात, इसको कहते हैं मॉडिफाइड। So this ensures unbiased space partitioning, still not much compactness. Compactness ज्यादा नहीं है। रीजन जानते हो क्या? अभी भी इसने हिस्से बांट के बोला कहीं भी रहो, कोई लॉस नहीं है। अब वो यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, सब जगह लॉस नहीं लगेगा। बस इसके ये वाला पॉइंट अगर इधर आ गया या ये इधर चला गया तो लॉस लग जाएगा। बट आपकी जो ये क्लासिफिकेशन है ये आपको एंगल्स पे दिखने लगेगा। बस आई एम डन ओके राइट। so now you can see that the points are over unit circle and the angular boundaries can be seen properly. The angle is ranging from 0 to pi. ये आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल 0 से पाई है, क्योंकि देखो एंगल हमेशा ना 0 से पाई पे जाएगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी स्टार्ट हो जाएगी ना। भाई ये 0 है, देख रहे हो, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मान लो ये एक क्लास है, ठीक है, दिस इज माय वन क्लास।
तो ये एंगल हो गया, ये 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 हो गया, बढ़ाते 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 अभी इससे ज्यादा किया तो एंगुलर सिमिलैरिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारी जो एंगल की रेंज है दो के बीच की वो 0 से पाई के बीच में जाएगी, और अभी हम सिर्फ 2 क्लास क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एंड what we have seen that our cos theta is a monotonically decreasing function between 0 to pi। हमेशा नहीं होता है, ये देखो यहाँ तक तो गया, इसके बाद बढ़ने लगता है, तो यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है, और वही हमारी रेंज भी है। तो cos theta can always be seen as a decreasing function for our cases, and theta increase, cos theta decrease। We are done class, yes we are done। अगली क्लास हम लोग टाइमिंग आपको बता देंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट टाइम वी आर गोइंग टू फिक्स, आई मीन वी आर गोइंग टू मीट। इट्स गोइंग टू बी 1.5 hour लेक्चर। अभी किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुरंत पूछ ले। Sir, बोलिए बोलिए। sir, since I missed the previous lectures, so